Hello, my dear Vivekians. Anita ma'am again welcomes you all to the next session of EVS class. Yesterday, we started chapter 6 plants, in which we learned about the different types of plants like trees, shrubs, herbs, climbers, and creepers. Now, our today's topic is where do plants live and what do plants give us? The main objective of the lesson is to introduce different habitats of plants and to learn what plants give us. But before moving further, I would like to ask you some questions, okay? Will you be able to live at a place where there is ice everywhere and no trees? क्या आप किसी ऐसी जगह पर रह सकते हैं जहां पर चारों तरफ आइस हो और कोई भी ट्री ना हो? या फिर किसी डेजर्ट में रह सकते हैं आप where there is only sand and no water? Or will you be able to live in mountains where the weather is always cold? क्या किसी माउंटेन में रह सकते हैं जहां का वेदर हमेशा बहुत ही कोल्ड होता है? क्या रह सकते हैं हम ऐसी जगह पर जहां पर न वाटर हो न ट्रीज हो? डिफिकल्ट है ना? यस, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव एट सच प्लेसेस बिकॉज हमें रहने के लिए एक स्पेसिफिक एनवायरमेंट की जरूरत होती है. वी नीड ट्रीज, वाटर, सनलाइट, एयर टू सर्वाइव. सो सिमिलरली, जस्ट लाइक अस, plants also need a specific environment where they can live comfortably, and that is their home, and it is called their habitat. Now open your EVS coursebook at page number 67, put today's date and now read it. Where do plants live? The habitat of a plant is the place where it lives. Plants live in all places on the earth where they can find soil, sunlight, air and water. They live in deserts, forests, mountains and even in and underwater. कोई भी प्लांट जहाँ पर ग्रो करता है वो उसका हैबिटेट होता है, मीन्स उसका घर होता है. प्लांट्स हर उस जगह पर होते हैं जहाँ पर उन्हें सॉइल, सनलाइट, एयर और वाटर मिल जाता है. प्लांट्स डेजर्ट्स में भी होते हैं, फॉरेस्ट में भी होते हैं, माउंटेन्स में भी होते हैं एंड इवन अंडर वाटर भी कुछ प्लांट्स होते हैं. मीन्स जिस प्लांट को जैसा एनवायरनमेंट चाहिए उस जगह पर वो ग्रो करते हैं. नाउ लुक एट दीज पिक्चर्स. इन द फर्स्ट पिक्चर, cactus plants grow in hot, dry deserts. These areas receive very little rainfall. कैक्टस प्लांट हॉट एंड ड्राई डेजर्ट में ग्रो करता है. हॉट एंड ड्राई डेजर्ट एक ऐसा एरिया होता है वेयर द एयर इज वेरी हॉट, और क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होता है सो द वाटर एंड मॉइस्चर इज वेरी लेस हियर. बट द roots of the cactus plants are spread out to collect water when it does rain, और फिर वो वाटर उसकी स्टेम में स्टोर हो जाता है. मीन्स जब भी रेनफॉल होता है तो जो कैक्टस प्लांट की रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो बहुत फैली हुई होती हैं. तो जब भी रेन होती है तो वो उस वाटर को कलेक्ट कर देती हैं और फिर वो जो वाटर होता है उसकी स्टेम में स्टोर हो जाता है. तो इस तरह से कैक्टस प्लांट हॉट एंड ड्राई डेजर्ट में सर्वाइव करता है. कम टू द नेक्स्ट पिक्चर. Coconut trees grow in coastal areas. These areas are hot and humid. Coconut trees coastal areas में पाए जाते हैं. Coastal areas का climate बहुत ही hot और humid होता है. Humid means जब air में थोड़ा moisture होता है, that is called humid. तो coconut trees को इसी तरह की environmental conditions चाहिए होती है. But because coconuts have a high water requirement, so it is easier for them to grow in those areas so that the water stays near the root for a long time. Next picture, mango trees grow in plains. Mango trees जो होते हैं वो plains में ही grow करते हैं because mango trees requires high temperature and they need direct sunlight and plenty of space. इन्हें direct sunlight भी चाहिए होती है and they need also plenty of space. तो इस तरह के environmental conditions mango trees को plains में ही मिलती हैं. Come to the next one. Pine trees grow on cold, dry mountains that have heavy snowfall. पाइन ट्रीज की बहुत ही स्पेशल कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से वो माउंटेन्स में ही सर्वाइव करते हैं. लाइक जो पाइन ट्रीज होते हैं वो कोनिकल शेप के ट्रीज होते हैं.
जिसकी वजह से जब भी स्नोफॉल होता है तो जो स्नो होती है दैट कैन बी इजिली स्लिप ऑफ फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द पाइन ट्री। जो स्नो होती है वो इजिली स्लिप हो जाती है इनकी ब्रांचेस में से। कम टू द नेक्स्ट वन, लोटस प्लांट्स ग्रो इन वाटर। एज यू ऑल नो दैट लोटस प्लांट पानी में ग्रो होता है। द रूट्स ऑफ द लोटस प्लांट्स आर प्लांटेड इन सॉइल ऑफ पॉन्ड और रिवर, और जो इसके लीव्स होते हैं वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स ग्रो करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एनवायरमेंट may not survive in a different set of environmental conditions। मीन्स किसी एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट का जो प्लांट होता है वो किसी दूसरी एनवायरमेंटल कंडीशंस में जाके सर्वाइव नहीं कर पाता। नाउ लेट्स ट्राई टू, तो जो टॉपिक हमने अभी किया है, where do plants live? So this exercise is based on that and you have to match these plants with the places where they usually grow. Our next topic is, what do plants give us? Plants are the most important living beings on the earth. Other living things are found on the earth because of plants. Plants give us air to breathe, food to eat and shelter to live. So plants बहुत ही important होते हैं because जो भी other living things हैं अर्थ पे वो plants की वजह से ही survive कर पाते हैं। और plants से हमें क्या क्या मिलता है? Food, shelter, and the most important thing, we get air to breathe. We breathe oxygen from the air which keeps us alive. So we are alive just because of plants. Now let's learn कि plants हमें और क्या क्या देते हैं। Come to the next page. Let us explore more. We get cereals, pulses, fruits and vegetables from plants. Plants also provide food to animals. Now look at these pictures. Food obtained from plants. ये वो food है जो plants हमें provide करवाते हैं। Cereals like rice and wheat, pulses like chana and rajma, fruits like banana, grapes, vegetables, cauliflower and potatoes. So plants provide us many kinds of fruits, vegetables, grains and different kinds of pulses also. We also get oil from plants. हमें स्पाइसेस भी मिलती हैं प्लांट से विच एड टेस्ट टू आवर फूड। एंड बिसाइड्स फूड, प्लांट्स आल्सो प्रोवाइड मैनी मोर थिंग्स टू अस। सी द यूजेस ऑफ प्लांट्स इन योर बुक। द फर्स्ट वन इज फूड एंड क्रॉप्स, शुगर केन एंड स्पिनच। शुगर केन से हमें क्या मिलता है? शुगर, एंड देयर इज शुगर इन मैनी ईटेबल आइटम्स। स्पिनच एक वेजिटेबल है और आप सभी ने ये वेजिटेबल खाई होगी। नेक्स्ट इज परफ्यूम्स, जैस्मिन एंड रोज। तो जैस्मिन, रोज, ये जो फ्लावर्स हैं इनसे हमें क्या मिलता है? परफ्यूम। नेक्स्ट इज फाइबर्स, कॉटन एंड जूट। जूट कम्स फ्रॉम द जूट प्लांट एंड वी मेक बैग्स एंड सैक्स फ्रॉम जूट। कॉटन प्लांट से हमें कॉटन मिलता है एंड देन कॉटन कैन बी मेड इनटू थ्रेड, और उस थ्रेड से फिर कई तरह के कॉटन के क्लोथ्स बनाए जाते हैं, और हम समर्स में ज़्यादातर कॉटन के ही क्लोथ्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज शेल्टर फॉर एनिमल्स, बर्ड्स मेकिंग नेस्ट, मंकी लिविंग इन ट्री। आपने देखा होगा ना बर्ड्स को नेस्ट बनाते हुए ट्रीज पे, एंड मंकीज को भी देखा होगा ट्रीज पे। तो इस तरह से जो प्लांट्स हैं वो एनिमल्स को भी शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, बर्ड्स को भी शेल्टर प्रोवाइड करवाते हैं। वुड एंड पेपर, पेपर जो हमारे नोटबुक और बुक्स में होते हैं, सो वी गेट इट फ्रॉम प्लांट्स। और वुड से फर्नीचर बनाया जाता है जो हम अपने घरों में, स्कूल में यूज़ करते हैं। वी गेट मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स लाइक तुलसी, आंवला। तुलसी जो मैक्सिमम सभी के घरों में होती है एंड इट इज़ यूज्ड एज अ मेडिसिन। आंवला इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर हेल्थ। It helps to boost our immunity. Also plants help to keep the air clean. जो plants होते हैं वो air को भी clean करते हैं। So these are the uses of plants. तो देखा आपने plants से हमें कितना कुछ मिलता है। We cannot survive without plants. So we should not cut plants, we should take care of plants, water them regularly and do not pluck the flowers and leaves. So grow more and more plants and make this beautiful earth green and clean.
I hope you have understood the topic. Now your home assignment is Let's Try 2 and Let's Try 3 from your course book and Myton 2 and Myton 3 from your practice book. Underlined words are the new words. Write them neatly in your notebook and read the chapter done till now. This is all for today. We will continue this chapter in the next session. Till then, stay home, stay safe, take care. Bye-bye.